Okay, students. So the last lecture that we had already discussed about cost of debt and cost of preference capital. हम कौन सा टॉपिक कर रहे थे? We are doing cost of capital. उसमें से दो sources का cost, which is debt and preference share capital, we have already discussed that. उसके practice questions दिए थे करने को, किए हैं? सबने किए हैं? भावना उससे पहले लगाया था. Am I audible to the students who are online with me? Yes, ma'am. Okay. So today the topic that we are taking up, that is cost of equity capital. I hope all of us know what are equity shares. So हर एक कंपनी को जब फंड्स की जरूरत पड़ती है तो एक ऑप्शन उनके पास क्या रहती है कि वो इक्विटी शेयर्स जौन से हैं वो इशू करें. अब इक्विटी शेयर्स जब इशू किए तो कॉस्ट तो हर एक सोर्स ऑफ कैपिटल की है. तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए अनमोल दिखता है बच्चे उधर जितने दोनों इजीली दिखे उतने बैठ जाओ. ठीक है, बाकियों को दिख रहा है? So cost of equity capital को कैलकुलेट करने के we have 4 methods. What we are going to cover up, बाकियों के अंदर तो एक मेथड ही था ना. सिर्फ एक था, बिफोर टैक्स कॉस्ट कैलकुलेट कर ली, आफ्टर टैक्स कर ली, रिडीमेबल है, इरिडीमेबल है. बट इक्विटी कैपिटल के केस में we have 4 different methods. One is your dividend yield method, जिसमें जो डिविडेंड हमें मिलता है हम उसको कंसिडर करते हैं. गुड मॉर्निंग जी. Second is your dividend yield plus growth in dividend method, that your dividend that is also going to grow, that is going to multiply. Next is your earning yield और earning price ratio, जो आपकी earnings होती हैं. बच्चे इतने पीछे मत बैठो. I don't have the remote, so मैं इससे प्रोजेक्टर ऑन नहीं होगा, तो आप कहीं पास में बैठो जहां पे आपको इजीली विजिबल है. And lastly, we are going to discuss about the realized yield method. We are going to take each of these one by one. Coming to, good morning, ji. Coming to your dividend yield या dividend price method. What does this method say? That cost of equity capital, it is the discount rate that equates the present value of future dividend per share with the net proceeds or current market price of share. Cost of equity capital क्या है? वो रेट जहां पे आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर डिविडेंड, जो आपको फ्यूचर में डिविडेंड मिलने हैं बट उसकी आज की रेट की जो वैल्यू है वो बराबर की हो with the net proceeds या current market price of the share, that is what, that is your cost of equity capital. Your cost of equity capital, it is denoted by E. जैसे हम पहले हमने KP किया, KD किया, D था सबस्क्रिप्ट में, अब इक्विटी कैपिटल में आ जाएगा KE. आप दोनों को दिख रही है? Visible to everyone sitting here? So KE हम कैसे निकालते हैं? D divided by MP और D divided by MP. D stands for dividend, KE stands for your cost of equity capital, NP is your net proceeds per share जो आपको मिली, या market price per share. Whatever would be given in the question to us, हम उसके basis के ऊपर calculate कर देंगे. अगर हमें net proceeds given है तो we'll use the formula D divided by net proceeds. If market value per share is specified in the question, we'll use the formula D divided by MP. So there is an assumption under this method
What is the assumption under this method? That the investors, they give prime importance to dividend and the risk remains unchanged. जो लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जो लोग इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, उनका मेन मोटिव क्या है? That they want to earn dividend, right? Any doubts with the formula? Students who are online, any doubts with this formula? Let's look into this question. A company issues 1,000 equity shares of 100 each at a premium of 10%. The company has been paying 20% dividend to the equity shareholders for the past 5 years and expects to maintain the same in the future. Compute cost of equity capital. This is one part. Second part is also there, that will it make any difference if the market price of share is 160? 100 रुपए का शेयर कंपनी इश्यू कर रही है 10% प्रीमियम पे. 100 का शेयर इश्यू प्राइस कितना हुआ? 110. तो नेट प्रोसीड्स कितनी हो गई? 110. 100 रुपए के शेयर पे कंपनी 20% डिविडेंड पे कर रही है. 100 का किया 20%, वो कितना आ गया? 20 रुपीज. तो मेरा डी कितना हो गया? 20. नेट प्रोसीड्स हो गए 110. इफ यू वांट यू कैन मल्टीप्लाई इट बाय 1000, जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं. फिर आपको डिविडेंड को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नेट प्रोसीड्स को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 20 into 1000, 110 into 1000. But we can do it as it is also using the single value, क्योंकि हमने तो कॉस्ट ढूंढनी है. So 20 divided by 110, D divided by NP into 100. When you will solve it, it will come out to be 18.18%. Then they are saying that if the market price of share is 160, will it make any difference? That means which formula are we to use now? D divided by MP, market price. Dividend तो same रहेगा, market price जो मर्जी हो. डिविडेंड तो आपको फेस वैल्यू पे मिल रहा है. तो 20 divided by 160 into 100. So when your market price is 120, your cost of capital is 12.5%. So definitely it is making some difference. Without taking into consideration the market price, हमारा cost of capital जो सा है equity capital वो ज्यादा है, वो 18.18% है. बट जब हम मार्केट प्राइस लेके चल रहे हैं शेयर की 160, तो मेरा कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल कितना है? 12.5%. क्लियर है? एनी डाउट्स? प्रभजोत, कोई डाउट? द स्टूडेंट्स हु आर ऑनलाइन, एनी डाउट्स इन दिस क्वेश्चन? No, ma'am. Now coming to your second method, which is dividend yield plus growth in dividend method. अभी पिछले वाले में हमने क्या पढ़ा? जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, हमने उसमें पढ़ा कि दिया हुआ है कि कंपनी जौन सी है उसको 20% डिविडेंड पे कर रही है पिछले 5 सालों से, तो इस बारी भी वो वही मेंटेन करेगी. अब ये क्या मेथड आ गया? दैट देयर इज गोइंग टू बी अ ग्रोथ इन डिविडेंड पर शेयर. That the dividend, it does not remain same throughout. The company tends to increase the value of dividend. There is a growth in the rate of dividend. So when the dividend of the firm, they are expected to grow at a constant rate and dividend payout ratio is constant, this method can be used. जब हम मान के चल रहे हैं कि कंपनी का डिविडेंड एक कांस्टेंट रेट पे ग्रो करता है, every year 2% increase, every year 5% increase, so then we use this formula. How it is calculated? KE, cost of equity capital, is equal to D1 divided by net proceeds plus growth rate.
ग्रोथ रेट आपको ऑलरेडी परसेंटेज में गिवन होगी, तो वो हमने यहाँ पे कर देनी है प्लस। अब ये D1 क्या है, हमें क्वेश्चंस में पुराना डिविडेंड दिया हुआ होगा कि पिछले साल कंपनी ने इतना डिविडेंड पे किया, इस साल 5% बढ़ा के पे करे। तो जो पिछले साल वाला है वो क्या हो गया आपका D0, D0, वो क्या है पिछले साल का डिविडेंड। तो इस साल का डिविडेंड कैसे आएगा, इस साल का डिविडेंड आएगा पुराना डिविडेंड मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस जी। तो D1 का क्या फॉर्मूला रहेगा, D0 पुराना डिविडेंड इंटू 1 प्लस जी। सिंप्लीफाई करके यहाँ पे दिया हुआ है कि आपका पूरा फॉर्मूला ही क्या बन सकता है, KE is equal to D0 into 1 plus G divided by net proceeds plus G. KE cost of equity capital, D0 old dividend, D1 is your expected dividend, NP net proceeds, G is your growth rate. Clear? But it's the same. It's the same growth rate. वो फॉर्मूला में फिर हम पूरा बड़ा नहीं ना लगा सकते। The students who are online, any doubts? No, ma'am. अगर इस क्वेश्चन में they tell you कि ये तो है cost of equity capital, if they want you to calculate the cost of existing share capital, net proceeds की जगह denominator में आ जाएगा market price, क्योंकि मार्केट प्राइस से हमें पता चलेगा कि आज के डेट में हमारी शेयर्स की वैल्यू क्या है। सो दैट वुड बी योर एमपी। इंस्टेड ऑफ एनपी, इंस्टेड ऑफ नेट प्रोसीड्स, वी विल बी यूजिंग मार्केट प्राइस। अ कंपनी प्लान्स टू इशू 1000 new shares of 100 each at par. The flotation costs are expected at 5% of the share. The company pays a dividend of 10 per share initially, and the growth is dividend is expected to be 5%. Compute the cost of new issue of equity shares. If the current market price of an equity share is 150, calculate cost of existing share capital. अब इस क्वेश्चन में क्या है कि आपने नए शेयर्स इशू किए, आपने अभी शेयर्स इशू किए। एक शेयर आप 100 रुपए का शेयर इशू कर रहे हो 100 पे, 5% है फ्लोटेशन कॉस्ट, उसको मार्केट में फ्लोट करने की, एक्सचेंज में लिस्ट कराने की हमारी कॉस्ट कितनी है, 5%। 100 का 5%, 5 रुपीज क्या हो गई है फ्लोटेशन कॉस्ट। कंपनी डिविडेंड पे करती है 10 रुपए का इनिशियली, इसी साल तो इश्यू किए, इसी साल हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इस साल मेरा डिविडेंड कितना है 10 रुपीज। ग्रोथ रेट कितना है दिया हुआ है, ग्रोथ इन डिविडेंड इज एक्सपेक्टेड टू बी 5%। हमने कंप्यूट करना है कॉस्ट ऑफ न्यू इश्यू ऑफ शेयर्स, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट उन्होंने बोला है कि अगर मार्केट प्राइस 150 है, देन व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल। फॉर्मूला क्या है, KE इज इक्वल टू D1 डिवाइडेड बाय NP प्लस G। D1 कितना है, 10 रुपए पर शेयर डिविडेंड पे कर रहे हैं, तो वो आ गया 10 रुपए। नेट प्रोसीड्स 100 में से फ्लोटेशन कॉस्ट 5 रुपए माइनस कर दी, तो वो आ गई आपकी 95 प्लस ग्रोथ रेट 5%। सो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम करेंगे 10 divided by 95 into 100, that will give me 10.53। ये तो परसेंटेज में ऑलरेडी है, ये वाला मैंने परसेंटेज में निकाल दिया, क्योंकि अगर अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगी फिर मेरे लिए ज्यादा कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। 5 डिवाइडेड बाय 100, फिर एलसीएम लिया, उससे कैलकुलेशन होगी, तो इसको मैंने परसेंटेज में ही रहने दिया ग्रोथ रेट को। D1 डिवाइडेड बाय NP इंटू 100 करके देख लिया, वो आ गया 10.53। दोनों को ऐड कर दिया तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल कितनी आ गई, 15.53%। क्लियर? एनी डाउट्स?
Now coming to the next part where your market price is 150, कुछ नहीं करेंगे, जहां पे NP है वहां पे हम ले लेंगे market price. D1 10 divided by 150 plus 5%, 10 divided by 150 into 100, इसको solve किया, that will come out to be 6.67%. दोनों को add कर दिया तो cost of equity capital आ गई 11.67%. Clear? Anyone having any doubts in this? Harry, कोई doubt? Students who are online, any doubts with this question? No, ma'am. Coming to the third method, which is your earning yield or your earning price ratio. As per this method, the cost of equity capital is the discount rate that equates the present value of expected future earnings per share with the net proceeds or current market price. पहले वाले मेथड में हम क्या कह रहे थे? फ्यूचर वैल्यू ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर डिविडेंड्स. यहाँ पे क्या है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ योर एक्सपेक्टेड फ्यूचर अर्निंग्स पर शेयर. तो इसमें फॉर्मूला क्या है? अर्निंग्स पर शेयर डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स. अगर कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल निकालना होगा इक्विटी कैपिटल, तो अर्निंग्स पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर हो जाएगा इसका फॉर्मूला. Now looking into the situations when this method it can be employed. In the first place, when the earnings per share are expected to remain constant. जब आपकी EPS constant रहेगी, जब तभी हम इस method को use कर सकेंगे. When dividend payout is 100% और retention rate is 0. जब हम dividend payout या retention ratio की बात कर रहे हैं, तो हम क्या कह रहे हैं? मान लो आपको ₹1,00,000 का प्रॉफिट हो, तो जब आपको पूरा 1 लाख यू आर डिस्ट्रीब्यूटिंग इट अमंग्स द शेयर होल्डर्स, दैट इज व्हाट? दैट इज योर 100% डिविडेंड पे आउट. अगर अब 1 लाख हुआ, उसमें से 80,000 मैंने बांटा, 20,000 अपने पास रख लिया, फर्म ने रिटेन कर लिया एज रिटेन्ड अर्निंग्स. सो दैट वेज इन दैट केस दिस मेथड कैन नॉट बी एम्प्लॉयड. Then when a firm is expected to earn an amount on new equity shares which is equal to the current rate of earnings, जब आप earn करने वाले हैं some amount on your equity shares जो आप नए issue करेंगे, then the market price of the share is influenced only by earnings per share. The only force that is affecting your market price per share, that is your earnings per share. इसके अलावा आपके shares की market price में चाहे आप कोई डिविडेंड पे करो या आप कुछ और करो, तो उससे आपके मार्केट प्राइस पे फर्क नहीं आता. मार्केट प्राइस पे फर्क किससे आता है? ओनली बाय योर अर्निंग्स पर शेयर. A firm is considering an expenditure of ₹60 lakh for expanding its operations. The relevant information is as follows. Number of existing equity shares 10 lakh. Market value of existing shares 60 rupees. Net earnings 90 lakh. Compute cost of existing capital and of new equity capital, assuming new shares will be issued at a price of 52 per share and cost of new issue will be 2 per share. वो कह रहे हैं जो आपका एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल है उसकी पहले कॉस्ट कैलकुलेट करो, फिर अगर आप ये नए शेयर्स इशू करते हो, 52 का शेयर 2 रुपीज फ्लोटेशन कॉस्ट, तो नेट प्रोसीड्स मेरी कितनी रह जाती है? 50. तो इसके ऊपर भी आप कैलकुलेट करो इक्विटी कैपिटल की कॉस्ट क्या रहेगी. अगर अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल मुझे एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल निकालना है, तो एग्जिस्टिंग के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है? अर्निंग्स पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर. नेट अर्निंग्स कितनी है? 90 लाख.
नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं? 10 लाख। अर्निंग्स पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस, मार्केट वैल्यू इज 60, तो 60 इंटू 10 आई, यहाँ पे बच्चे गलत है, अदरवाइज इट शुड बी, पहले ईपीएस निकालना है, अर्निंग्स पर शेयर हम निकाल लेंगे। अर्निंग्स पर शेयर क्या होती है कि आपकी एक शेयर को कितनी अर्निंग्स मिलेगी, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ अर्निंग्स दैट इज एक्रूड टुवर्ड्स वन शेयर। 90 लाख टोटल है, 10 लाख शेयर, 90 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख, तो एक को कितना मिल रहा है? 9 रुपए। अब मुझे कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल अगर निकालनी है तो 9 रुपीज डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस कितना है? 60 रुपीज पर शेयर, 9 डिवाइडेड बाय 16/100, दैट विल कम आउट टू बी 15%। अब वो कह रहे हैं कि आप नए कैपिटल का भी निकालो, जो आपका वो नेट प्रोसीड्स वाला है, 52 रुपीज का शेयर इशू कर रहे हो और 2 रुपए फ्लोटेशन कॉस्ट है, तो अर्निंग्स पर शेयर तो कांस्टेंट रहने वाली है ना एज पर दिस मेथड। तो ईपीएस कितना आ जाएगा? 9 डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स 52 minus 2, that is 50 into 100, it will come out to be 18%. Clear? Any doubts with this? Any student having any doubts? The students who are online, बच्चे, any doubts? No, ma'am. No, ma'am. All right then students, this is it for today. Rest of the topic I'll take up, जो एक method रह गया है, that we'll discuss tomorrow when we'll also cover up the other topic. The students who joined in class late, kindly tell me your roll numbers.